अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, रमज़ान मुबारक। आप सब लोगों को रमज़ान मुबारक। आज हमारा टॉपिक है इंटीग्रेशन और द एंटी डेरिवेटिव टुडे टॉपिक। Integration or anti-derivative is our topic. So anti-derivative means the opposite of the derivative, anti of the derivative. This is also called the integration. Opposite of the derivative, converse of the derivative, inverse of the derivative. Therefore, anti-derivative. This is also called the integration. So I am writing some formulae for the integration. First the algebraic formulae and the trigonometrical formulae. This is the symbol for the integration. This is the symbol for the integration. X raised to power n with respect to x. It will become x raised to power n plus 1. One power will be added, divided by the same power n plus 1 and plus some constant. Because the derivative of the constant is always 0, so we have to, there is no, we have to add some constant c. That constant will be c. Now who came? Muhammad Munif. The derivative of x raised to power n is equal to, with respect to x, dx with respect to x, the derivative, the integration of x raised to power n with respect to x will be x raised to power n plus 1 divided by n plus 1 and then plus c plus some constant. C will be added in all the integrations. C will be added in all the integrations.
whatever be the integration. And if it is not x, it is constant. C with respect to x, that integration of c with respect to x will be c into x. Suppose this is k, some constant other than c. There is some constant 1, 2, or 3, and we are integrating 3 with respect to x. It will be 3x. The constant into x plus c. C will be added in all the answers. Integration of 1 upon x with respect to x, it will become ln x plus c. C will be added in all the cases. So last time in the uh, Taylor's and Maclaurin's theorem, Taylor's and Maclaurin's expansion, I told you that derivative of ln x will be equal to 1 upon x. Derivative of ln x will be 1 upon x. And the integration of 1 upon x will be ln x. Because integration is the opposite of the derivative. If the derivative of ln x will be 1 upon x, then the integration of 1 upon x will be ln x. So these are the algebraic derivatives of some algebraic function, integration of some algebraic function. Now who came? Ayman Akmal. Okay. If we have just like that, integration of ax plus b whole is to power n with respect to x, it will be equal to ax plus b whole is to power n plus 1 divided by n plus 1 multiplied by or it will be divided by derivative of ax plus 1. Ax plus b, sorry. Generally, we do such type of question with chain rule, but I'm writing over there. Integration of ax plus b whole is to power n with respect to x. It will become ax plus b whole is to power n plus 1 upon n plus 1. And also, it will be divided by the derivative of ax plus b. What is inside its derivative, it will be divided by this derivative and plus c. C will be added in all the cases. So integration of ax plus b whole is to power n with respect to x, it will become ax plus b whole is to power n plus 1 divided by n plus 1. And then it will be divided by the derivative of ax plus b and plus c at the end.
मधिया। There are two types of integration. One is called the definite and one is called the indefinite. These are the formulae for the indefinite where we are adding c. In the definite integrals we do not add c. Definite integrals में हम c add नहीं करते, और ये डेफिनेट इंटीग्रल्स इसीलिए इनडेफिनेट कहलाते हैं कि सी की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, तो इनडेफिनेट वैल्यूज आर सी। डेफिनेट इंटीग्रल में सी ऐड ही नहीं करते, इसलिए ये डेफिनेट इंटीग्रल्स कहलाते हैं। और उसमें क्या होगा, उसमें एक्स की वैल्यू दी जाती है, वो हमने सब्स्टिट्यूट करनी होती है, सो वी आर डूइंग एक्सरसाइज 5.4। This is on page 365. Exercise 5.4, 365. We are doing the definite integrals. Evaluate the integrals. Exercise 1 to 26. 1 to 26. Question number 1. Integral -2 to 0 of 2x plus 5 dx. ये डेफिनेट इंटीग्रल्स है। डेफिनेट इंटीग्रल्स में हमें यहाँ x, यहाँ इनकी लिमिट्स दी जाएगी -2 to 0. दिस इज कॉल्ड द लोअर लिमिट, दिस इज कॉल्ड द अपर लिमिट। इंटीग्रल के निशान पर हमें लिमिट्स दी जाएगी -2 to 0, जस्ट लाइक दैट। सो द लोअर वन, ये नीचे वाली क्या कहलाती है, लोअर लिमिट, और ऊपर वाली अपर लिमिट कहलाती है। नीचे वाली लोअर लिमिट, ऊपर वाली अपर लिमिट कहलाती है। तो पहले हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, बस c का इसमें इजाफा नहीं करेंगे, हम आम इसको सिंपल इंटीग्रेट करते हैं। 2x का इंटीग्रल, 2 कांस्टेंट है, एज इट इज रहेगा। x का इंटीग्रल, x में मैंने बताया था x टू पावर n हो तो उसमें एक पावर ऐड कर दी जाती है। तो पावर 1 थी, ये पावर 1 थी, इसको 2 कर देंगे, एक पावर ऐड कर देंगे, और जो पावर अब बनी उसी से इसको डिवाइड भी कर देंगे। x की पावर n है अगर, तो उसमें एक पावर ऐड कर देंगे, n+1 हो जाएगा, और n+1 से इसको डिवाइड भी कर देंगे। ठीक है, प्लस द नेक्स्ट नंबर 5। कांस्टेंट अगर होगा, कांस्टेंट होगा तो उसका इंटीग्रल क्या होगा, कांस्टेंट इनटू x। सो दिस इज 5, इट विल बिकम 5x। ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। इसमें हमने c ऐड नहीं किया डेफिनेट इंटीग्रल्स में। अब क्या करेंगे, इसमें हम लिमिट लगा देंगे, यहाँ ये ब्रैकेट डालेंगे, यहाँ ये ब्रैकेट डालेंगे, लार्ज ब्रैकेट, और ये -2 to 0, ये ब्रैकेट के लास्ट उस पर लिख देंगे, ब्रैकेट के सेकंड राइट वाले ब्रैकेट पर लिख देंगे। जो क्लोज कर रहा है, क्लोज वाले पे इसका लिमिट लिखेंगे, लोअर लिमिट नीचे लिख देंगे, ऊपर अपर लिमिट ऊपर लिख देंगे। अरे
11308 शाहमीर। ओके, सिंप्लीफाई कर ले। सबसे पहले इसको ये कैंसिल हो गया, तो वी हैव ओनली एक्स स्क्वायर प्लस 5x लिमिट -2 to 0। ये एंड में लिखना है, ब्रैकेट के एंड में। अब ये वैल्यू, अब पहले आप ऊपर वाली वैल्यू पुट करेंगे इसमें, 0 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 0। ये ऊपर वाली हमने वैल्यू पुट कर दी, माइनस नीचे वाली वैल्यू पुट करेंगे, -2 स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2। इट विल बिकम 0। ये तो 0 ही रहा। 0 स्क्वायर विल बी 0 प्लस 5 इंटू 0 विल बी 0, तो 0 हो गया। माइनस ये क्या हो गया, -2 का स्क्वायर 4 हो गया, प्लस 5 इंटू -2 विल बी -10। इट विल बिकम 0, खत्म हो गया, समझिए। 0 माइनस 4 माइनस 10 will be -6, minus minus plus 6, 0 plus 6 will be 6 is the answer। तो डेफिनेट इंटीग्रल में एक डेफिनेट आंसर आता है, आखिर में वैल्यू पुट कर दी जाती है। डेफिनेट इंटीग्रल में लिमिट्स दिए जाएंगे। दिस इज द आइडेंटिफिकेशन डेफिनेट इंटीग्रल की। डेफिनेट इंटीग्रल्स में ये लिमिट्स दिए जाएंगे, इसलिए जब उसको इंटीग्रेट करेंगे तो उसमें सी का इजाफा नहीं करेंगे, बस उसको सिंपल इंटीग्रेट करेंगे और ये बड़ी ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट डाल के यहाँ लिमिट लिख देंगे। लोअर लिमिट नीचे लिखेंगे, अपर लिमिट ऊपर लिखेंगे। फिर उसके बाद उसमें एक्स के लिए पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, ब्रैकेट में लिख देंगे, माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे, उसको भी एक ब्रैकेट में डाल देंगे। इसको भी सिंप्लीफाई कर लेंगे, इसको भी सिंप्लीफाई कर लेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो दैट विल बी द आंसर। So this is the only difference between definite and indefinite। और डेफिनेट इंटीग्रल में हम x की वैल्यू डालते हैं, वेरिएबल की वैल्यू पुट करते हैं, पहले अपर वैल्यू फिर लोअर वैल्यू, और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, दोनों आंसर्स को। और इनडेफिनेट इंटीग्रल में ये कुछ भी नहीं करते, वैल्यू नहीं पुट की जाती, उसमें वैल्यू दी ही नहीं जाती, तो क्या पुट करेंगे, और उसमें प्लस सी कर देते, कांस्टेंट एक ऐड कर देते। जब इंटीग्रेट करते हैं, जैसे यहाँ हमने इंटीग्रेट किया, ये आंसर आया, इसमें प्लस सी कर देते हैं आखिर, यहाँ प्लस सी। और ये चूंकि नहीं होता वैल्यू, तो ये ब्रैकेट भी नहीं होता, प्लस सी लिखते। तो यही अगर इंडेफिनिट में होता, यही क्वेश्चन अगर इंडेफिनिट में होता तो ये यूं होता, दिस इज द इंडेफिनिट। इसका आंसर क्या हो जाता, 2x का 2x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 5 इंटू एक्स, और प्लस सी का एक इजाफा कर दिया, 2 से 2 कैंसिल हो जाता, ये आंसर आ जाता है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस सी। ये आंसर आ जाता है इनडेफिनेट में। इनडेफिनेट में सिर्फ इसको इंटीग्रेट करते इस तरह, और यहाँ प्लस सी कर देते, और यही आंसर आ जाता हमारे पास, और प्लस सी करके। दैट इज द फाइनल आंसर इन इनडेफिनेट इंटीग्रल्स में। दिस इज द इनडेफिनेट। और ये डेफिनेट था, जब ये वैल्यू दी जाए, यहाँ पर लिमिट दे दिए जाए, तो दिस इज द डेफिनेट।
This is the definite integrals when the values are given, limits are given. This is the indefinite integral when the value limits are not given. और उसमें सी लिखते हैं, इसमें सी नहीं लिखते. That was question number 1. ये समझ में आ गया बेटा? Have you all understood? This is the antiderivative, opposite of the derivative, converse of the derivative. उसमें हम एक पावर माइनस करते थे, इसमें एक पावर ऐड कर देते हैं, सिंपल सी बात. उसमें पावर से मल्टीप्लाई कर देते थे, इसमें पावर से डिवाइड कर देंगे, और आखिर में सी ऐड कर देते हैं. और अगर इंडेफिनेट है तो वो सी भी ऐड नहीं करेंगे, सी भी ऐड नहीं करेंगे अगर डेफिनेट है. और उसमें क्या करेंगे हम, उसके वो उसमें वैल्यूज पुट कर देंगे. पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, अपर वैल्यूज पुट करेंगे माइनस द लोअर वैल्यूज. दैट वाज क्वेश्चन नंबर 1. तो डेफिनेट और इनडेफिनेट का मैंने आपको फर्क बता दिया. यही क्वेश्चन है, डेफिनेट होगा तो क्या होगा, इनडेफिनेट होगा तो क्या होगा. हमजा अली. Question number 3. Integral 0 to 4. Question number 3. Integral 0 to 4 of 3x minus x cube upon 4. dx लाजमी लिखना है ताकि पता चले दिस इज इंटीग्रेटेड विद रिस्पेक्ट टू x. महानूर. इंटीग्रेट करेंगे इसको. 3x का 3x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस ये 1/4 कांस्टेंट है. x का डेरिवेटिव x3 का इंटीग्रेशन x4/4 जो भी पावर 1 ऐड करके बनेगी उससे डिवाइड करेंगे. यहाँ 1 था, पावर 2 कर दी हमने, 2 से डिवाइड कर दिया. 3 था, पावर 4 कर दी, 4 से डिवाइड कर दिया. एंड द 0 to 4, दिस इज द लिमिट, दिस इज द वैल्यूज. सिंप्लीफाई करें अगर ये होता है, सो दिस इज 3/2 x स्क्वायर माइनस 1/16 x4 0 to 4. पहले अपर वैल्यू पुट करेंगे 4, it will become 3/2 4 raised to power 2 minus 1/16 4 raised to power 4 माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे 3/2 0 स्क्वायर माइनस 1/16 0 raised to power 4
Now I'll simplify. 3 upon 2, 4 is to power 2 will be 16, minus 1 upon 16, 4 is to power 4 will be 16 into 16, 256. Minus 3 upon 2 into 0 will be 0. 1 upon 16 into 0 will be 0. Further, 2 ones are 2, 2 eights are 16. 8 threes are 24. Minus 16 ones are 16, 16 sixes are 16, 16s are 256. Minus 16. And minus 0 minus 0 will be 0. Further, 24 minus 16 will be 8. Minus 0. Open it, 8 minus 0. The answer is 8. This is the final answer, 8. तो कोई मुश्किल नहीं है, डेफिनेट इंटीग्रल, बस सी की वैल्यू नहीं डालनी, इसको इंटीग्रेट करेंगे 3x² अपॉन 2, इसको इंटीग्रेट करेंगे 1/4x टू पावर 4/4, 0 to 4 इसका लिमिट लगा दिया, तो 3/2x पावर 2 minus 1/16 x टू पावर 4, 0 to 4. पहले 4 पुट करेंगे, 3/2 4 is to power 2 minus 1/16 4 is to power 4, minus lower limit 3/2 0 square minus 1/16 0 raised to power 4. 3/2 4 raised to power 2 will be 16, minus 1/16 4 raised to power 4 will be 256. Minus 3 over 2 into 0 will be 0, minus 1/16 into 0 will be 0. 2 ones are 2, 2 eights are 16, 8 threes are 24. 16 ones are 16, 16 16s are 256. 16 into 1 will be 16. Minus 0 minus 0 will be 0. 24 minus 16 will be 8. Minus 0, 8 minus 0 will be 6. 8. This is the answer. Question number 7. Question number 7. One to 32. Integral from 1 to 32. X is to power minus 6/5. Dx. Single term है अब ये. This is the single term. So it will become x is to power minus 6/5 में +1 कर देंगे एक पावर, और जो ये पावर बनती है उसी से डिवाइड कर देंगे, और इसको में हम लिमिट लगा देंगे. अब ये दो टर्म्स तो है नहीं जो हम इसको दूसरा ब्रैकेट भी लगाएं, जरूरत नहीं है. जब डबल टर्म है तो ब्रैकेट की जरूरत पड़ती है, वरना नहीं. यहाँ हम लिमिट लिख देते हैं 1 to 30. चाहे तो यहाँ ब्रैकेट लिख दें, चाहे तो ना लिखें, बिकॉज दिस इज द सिंगल टर्म. दे आर नॉट मोर देन 1 टर्म्स. राहत रब्बानी 109.
Okay, it will become x raised to power minus 6 upon 5 raised to plus 1. 5 1s are 5. तो यहाँ मैं करके बताता हूँ माइनस 6 upon 5 plus 1. तो 5 minus 6 plus 5, it will become minus 1 upon 5. It will become minus 1 upon 5. So this will become minus 1 upon 5 divided by ये भी minus 1 upon 5. जो पावर ऊपर है वही नीचे आनी चाहिए. और इसका क्या हो गया 1 to 32. ये minus 1 upon 5 ऊपर चला जाएगा. It will become 5 upon 1. या 5 1 upon 5 will become minus 5 upon 1. That means 5. X raised to power minus 1 upon 5. और ये इसका लिमिट है 1 to 30. तो आगे हम यहाँ करेंगे माइनस 5 एक्स टू पावर माइनस 1 अपॉन 5. तो इसको पावर को नीचे ले आएंगे तभी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. नेगेटिव पावर सॉल्व नहीं हो सकती. माइनस 1 अपॉन एक्स टू पावर 1 अपॉन 5 हो जाएगा. नेगेटिव पावर होगी तो हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते. ये नीचे आ जाए. अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे. पहले अपर लिमिट इस ब्रैकेट में लिख देंगे माइनस 5 अपॉन 32 रेज टू पावर 1 over 5. ऊपर वाला फिर माइनस 5 अपॉन लोअर लिमिट 1 रेज टू पावर 1 अपॉन 5. फर्दर minus 5 upon 32 raised to power 1 over 5 will be equal to 2. कैलकुलेटर से करें. फिफ्थ रूट ऑफ 32. Fifth root of 32. It will become 2. 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 2s are 36. So 2 minus 5 1 raised to power 1 over 5. 1 का कोई भी रूट ले ले 1 ही रहेगा. ओपन कर दे इसको. माइनस 5 अपॉन 2 और ये माइनस माइनस प्लस 5. इसको भी सॉल्व कर ले. यहाँ कर ओपन कर ले इसको. माइनस 5 अपॉन 2 माइनस माइनस प्लस 5. माइनस 5 अपॉन 2 प्लस 5. इसको भी हम एलसीएम लेकर कर लें. एलसीएम विल बी 2. इट विल बिकम माइनस 5 प्लस 10. 2 5 are 10. ये अपॉन 1 है. 5 का मतलब 5 अपॉन 1. तो माइनस 5 प्लस 10 विल बी 5 अपॉन 10. 5 upon 2, sorry. The answer is 5 upon 2. Minus 5 plus 10 will be 5 upon 2 is the answer. Abdullah sir. Zafir Khan. So this is the answer. Again, x is to power minus 6 upon 5. इसको इंटीग्रेट करना है with respect to x. So it will become x is to power minus 6 upon 5 plus 1. इसी पावर से इसको डिवाइड भी कर देना है.
So minus 6 upon 5 plus 1 will become minus 1 upon 5. So x is to power minus 1 upon 5 divided by minus 1 upon 5. ये माइनस 1 अपॉन 5 डिवाइड हो रहा है, ये ऊपर चला जाएगा माइनस 5 अपॉन 1 यानी माइनस 5 हो जाएगा और x is to power minus 5 और ये लिमिट इसका 1 to 32 यहाँ भी लिखा, यहाँ भी लिखा, यहाँ भी लिखा। अब इसके बाद हम इसको माइनस 1 अपॉन 5 पावर जो है ये नीचे चली जाएगी ताकि ये 1 पॉजिटिव पावर आ जाए। पॉजिटिव पावर होगी तो सॉल्व हो सकती है। तो माइनस 5 है अपनी जगह रहा, एक्स इज टू पावर माइनस 1 अपॉन 5 नीचे चला गया, एक्स इज टू पावर 1 ओवर 5 और लिमिट 1 to 32। पहले अपर लिमिट पुट किया, माइनस 5 अपनी जगह रहा, 32 रेज टू पावर 1 ओवर 5। फिर माइनस लोअर लिमिट पुट किया, माइनस 5 अपनी जगह रहा और नीचे 1 रेज टू पावर 1 ओवर 5। So minus 5 upon 32 raised to power 1 over 5 will become 2. Minus 1 raised to power minus 5 upon 1 raised to power 1 over 5 will be 1. Open कर दिया ये plus 1 5 minus 5 upon 2 plus 5 5 upon 1 LCM लेके कर लिया तो minus 5 upon 2 LCM 2 आ गया, minus 5 आ गया, plus 10 आ गया, तो minus 5 plus 10 will be 5 upon 2 is the answer. 5 upon 2 is the answer. That was question number 7. Question number 8. Question number 8. Integrate minus 2 to minus 1 2 upon x square dx। इंटीग्रेट करना हो या डिफरेंशिएट करना हो, इन पावर्स को पहले ऊपर ले जाते हैं। इंटीग्रेट करना हो या डिफरेंशिएट करना हो, ये पावर्स को हम ऊपर ले जाते हैं।